Hello to all of the students. First of all, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। मैंने सवाल पर ईद मुबारक पोस्ट किया था, जो मेरे साथ ऐड है फेसबुक पर, तो उन्होंने तो पढ़ लिया होगा। तो अभी दिन तो काफ़ी हो गए, लेकिन क्लास उनके बहुत दिनों के बाद है। बहरहाल फिर भी ईद मुबारक हो आप सबको। So today our topic is physiological anatomy of cardiac muscle. आज हम डिस्कस करेंगे physiological, not a proper anatomy, but the anatomy which is concerned with physiology of the heart. So we will discuss physiological anatomy of the heart, and our learning objectives are define the term rhythmicity, excitability, conductivity, and contractility. These are what is the rhythm, how the heart is excited, how the current is conducted, and how the heart contracts. So this is our first learning objective. The second one is the describe cardiac sensation. So what we mean by the sensation, we will read it in this lecture and outline the normal pathway of cardiac impulse, how the current spread, what is the pathway through which the current spread in the cardiac muscle. Our other objective, describe the excitation, contraction, coupling in cardiac muscle. You have already learned in a lecture by Dr. Rashid. He has discussed this excitation, contraction, coupling, but that was in skeletal muscle and how it occurs in the cardiac muscle. Cardiac muscle में कैसे excitation, contraction, coupling होती है, तो ये हम discuss करेंगे. Compare the contrast action potential in sinoatrial node and ventricular muscles. अब sinoatrial node में how the current is generated and how it is spread to the sinoatrial node to the ventricle, and explain the significance of plateau and refractory period in ventricular muscle. So this is why plateau occur in the cardiac muscle action potential. We will discuss that plateau. So these are the learning objective of this lecture. Now, the cardiac muscle. What is cardiac muscle? Cardiac muscle tissue or heart muscle. इसको heart muscle भी कहते हैं, cardiac muscle भी कहते हैं, as it's sometimes called is found in only one place in the body, the wall of the heart. This is a unique muscle which is found only in the heart muscle, not in any other part of the body. It is very unique. It is only related to the wall of the heart. So it is not found in any other tissue except the heart. दिल के सिवा किसी और टिश्यू में ये मसल मौजूद नहीं होते हैं. कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में मौजूद हैं. और the actual muscular wall of the heart is called the myocardium. इसको myocardium भी कहते हैं. जो wall है हार्ट का, इसको हम क्या कहते हैं? myocardium. Cardiac muscle has a very unique structure and could be described as intermediate or in between skeletal and smooth muscle. It is neither the skeletal muscle nor the smooth muscle, but it is between in these two muscles. Some character it acquired like a skeletal muscle, and some character it has like a smooth muscle. इसमें कुछ character ऐसी होती हैं जो कि smooth muscle की होती हैं, और कुछ खुसूसियात इसमें skeletal muscle की हैं, और ये इन दोनों के बीच में एक property है इस muscle की जो इसमें पाई जाती. So before going to the discussion of cardiac muscle,
First of all, let's discuss the conductive system, how the current is spread in the cardiac muscles. तो इसमें ये हम देखते हैं कि कार्डियक मसल में करंट कैसे स्प्रेड करता है. Remember that in cardiac muscle, the speciality of the cardiac muscle is that they have its own pathway of conduction, and they conduct the current like neuron. Neuron में जिस तरह conduction होती है, in the same way in this pathway or in this conductive system of the heart, the current are spread, but they are not actually neuronal cell. Neuron आपको डॉक्टर ताज ने पढ़ाया होगा ये neuronal cell नहीं है, nervous system के तरह नहीं है, लेकिन they spread current like neuronal cell. Neuronal cell की तरह ये current spread करते हैं. Neuronal cell नहीं है, बल्कि neuronal cell की तरह current spread करें. They are actually modified cardiac cell. कार्डियक सेल क्या हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं और ये न्यूरोनल सेल की इसने शक्ल इख्तियार की है. तो ये कंडक्टिव सिस्टम असल में इसकी कंपोजिशन क्या है. सबसे पहले इसमें होता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड. ये होता है राइट एट्रियम में, और इसके बाद फिर होता है AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, SA नोड जो राइट एट्रियम में होता है, और साइनो AV नोड वेंट्रिकुलर आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड जो वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान में होता है. इसके अलावा ये जो है ये पाथवेज हैं, कंडक्टिव पाथवे जो SA नोड से शुरू होते हैं. ठीक है, ये देखें, और आके AV नोड पर खत्म हो जाते हैं. साइनो आर्टरियल से आके आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड पर ये खत्म हो जाते हैं. यहाँ से अभी देखें कि एक बंडल शुरू होता है. ठीक है, ये AV नोड है, यहाँ से एक बंडल निकल रहा है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस. और ये बंडल ऑफ हेस फिर डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में. एक को हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरे को हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच. तो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है इट सप्लाई टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट बंडल ब्रांच सप्लाई टू दी राइट वेंट्रिकल. आप यहाँ पर एक बेसिक बात याद रखें कि जब आपके सामने कोई तस्वीर हो तो आपके लेफ्ट साइड पर जो स्ट्रक्चर होंगे वो राइट होंगे, और जो लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो होंगे वो लेफ्ट होंगे. ये बात समझ गए आप लोग कि आपके लेफ्ट साइड पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो राइट हैं और राइट साइड पर जो स्ट्रक्चर हैं वो लेफ्ट है. तो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, तो ये कंडक्टिव सिस्टम आपका हो गया. SA node, AV node, bundle of His, right bundle branch, left bundle branch, and then these small branches of the right and left bundle branch are called Purkinje fiber. These Purkinje fiber, like neuronal button, supply H fiber of the cardiac muscle. इसका क्या है कि ये एक फाइबर को क्या कर लेते हैं, सप्लाई करते रहते हैं. तो these are called what? Purkinje fiber. These small fibers are called Purkinje fiber and they supply the muscle fiber of the heart. अब अगर हम जरा पिछले उसमें चले जाएं तो जैसे as I told you, जैसे मैंने आपको बताया कि the cardiac muscle, this is actually the cardiac muscle is between in the skeletal muscle and between the smooth muscle. These are the smooth muscle, and you have already studied the smooth muscle and the skeletal muscle. If you remember my lecture, I have delivered a lecture on the skeletal muscle. So it is in between the skeletal and smooth muscle. It has some
property of the skeletal muscle and some of the smooth muscle. अब इसमें if you remember the skeletal muscle, तो उसमें ये myofibril है, and each myofibril then consists of actin and myosin, and you know that there were Z lines, and between the Z lines are sarcomere. ये from one Z line to the other Z line, this is called the sarcomere, and in this sarcomere you can see there are actin and myosin. The same is the case with the skeletal muscle, but the arrangement is different. यहाँ पर arrangement fiber की different है. आप यहाँ here you can see that this Z line is replaced by the dense body. ये जो आपको नजर आ रहा है, this is called dense body. यहाँ पर क्या है? Z line है skeletal muscle में, यहाँ पर क्या है? Dense body है. So the actin are actually here in skeletal muscle, the actin are attached to the Z line. ये Z line को attach होते हैं. Here the actin are attached to the dense body at one end and on the other end. ये आप देखें कि एक एंड पर और दूसरे एंड पर क्या है आपको नजर आ रहा है कि एक्टिन, and in between here you can see myosin which are attached by a springy tissue to the Z line. Here you can see in between of the actin, this structure is actually myosin. So you can see here that in the same way the actin and myosin interdigitating each other. एक दूसरे में जो है ना आपस में overlap करते हैं. When the muscle contract, so this overlap each other. अब अगर आप को याद हो तो मतलब ये है कि ये ओवरलैपिंग इसकी होती है. आपने देखा होगा कि जो चाइना से फ्रूट आते हैं, कार्डियक मसल की जो है वो शक्ल इस तरह बनी होती है, जो वो प्लास्टिक की जो वो जेली होती है उसमें वो फ्रूट बन होते हैं. ठीक है, तो कार्डियक मसल की अरेंजमेंट बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह वो जेली जो फ्रूट जिसमें फ्रूट डाले जाते हैं. ठीक है, तो आप ये देखें कि ये एक्टिन मायोसिन और ये आपस में इस तरह क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं. यहाँ डेंस बॉडी है, यहाँ डेंस बॉडी है, यहाँ डेंस, तो ये ट्रांसवर्सली और ये मसल इसको अटैच होता है. यहाँ मायोसिन होगा बीच में और ये यहाँ पर एक्टिन है. इधर द एक्टिन फाइबर एंड दिस इज द मायोसिन फाइबर. Now we will discuss the physiology of the cardiac muscle. तो अब यहाँ तक के डिस्कशन से हमें ये पता चला कि the heart is composed of three major type of cardiac muscle. इसमें तीन किस्म के major muscles हैं. You can see that there are all three main muscles in the heart. The first one is the atrial muscle. You can see in the heart there are two atria. You have two atria in the heart. So this is the right atria and this is the left. जैसे मैंने आपको बताया कि left पर आप right कहेंगे और right पर आप left कहेंगे. This is the right ventricle and this is the left ventricle. तो इसमें दो मसल, एक मसल कौन सा है? एट्रियल है. दूसरा मसल कौन सा है? वेंट्रिकुलर है. एंड तीसरे किस्म का मसल जो है वो कंडक्टिव मसल है. दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड. जैसे मैंने आपको कहा कि दे कंडक्टिव सिस्टम इज एक्चुअली मॉडिफाइड मसल ऑफ द हार्ट. जैसे जो स्वेट ग्लैंड है, व्हेन इट इज मॉडिफाइड इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्रेस्ट. ठीक है, आप देखें कि ब्रेस्ट किससे बनता है? स्वेट ग्लैंड से बनता है. इसी तरह यहाँ न्यूरॉनल टिश्यू अलग है और ये यहाँ भी कंडक्शन होती है. तो ये टिश्यू, these tissues are actually modified cardiac tissue and they have the capability to conduct current, ठीक है, across the heart walls. The atria and ventricle type of muscle
contract in much the same way as skeletal muscle. जैसे मैंने आपको बताया कि skeletal muscle और ये इसमें एक्टिन और मायोसिन है, तो जिस तरह skeletal muscle contract करता है, in the same way the cardiac muscle also contract like a skeletal muscle. But what is the difference between the contraction of skeletal muscle and contraction of the cardiac muscle? Its duration is prolonged. In skeletal muscle, when you put your body part, any body part which is touched with the, what I mean, when there is heart or when there कुछ इंजरी हो जाती है, तो skeletal muscle में एक्शन बहुत पोटेंट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है. आप जल्दी से वहां से हाथ उठा लेते हैं और वो एक्शन उससे खत्म हो जाता है. लेकिन हार्ट मसल में ये एक्शन थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है. और इसकी वजह हम अभी पढ़ेंगे कि इस प्रोलॉन्गेशन का फायदा क्या होता है, ठीक है. So now still we are in the physiological anatomy of the cardiac muscle. So cardiac muscle fiber arranged in a lattice work with the fiber dividing, recombining and then spreading again. इस लैटिस वर्क क्या कहते हैं? जाली की तरह बने होते हैं. कार्डियक मसल जो है वो एक जाली की तरह बने होते हैं. ये एक ब्रांच से क्या करेंगे, ये आपके शुरू होते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं, फिर आपस में कंबाइन होते हैं और फिर डिवाइड होते हैं. यहाँ here you can see that this is one single fiber. Here you can see it is divided into two. ठीक है, ये इस तरह यहाँ ये सिंगल फाइबर है, ये दो में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ आके ये आपस में ये जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये खाली जगह इसमें रह जाती है. और ये देखिए कि ये जो फाइबर यहाँ बना हुआ है, इससे एक फाइबर इस तरफ निकला है और एक फाइबर इस तरफ निकला है. सो इट इज डिवाइडिंग, जॉइनिंग एंड देन रीब्रांचिंग. ठीक है, तो दिस इन दिस वे दे मेक अ mesh or a lattice work. जालीदार काम, जालीदार शक्ल के ये मसल होते हैं. ठीक है. The cardiac muscle is striated in same manner as interfacial skeletal muscle. आपने ये striated, इसको आप कंफ्यूज ना करें कि कौन सा इतना बड़ा वर्ड नहीं है. स्ट्रा आपने पढ़ा होगा, स्ट्रा देखा भी है, जिससे आप जूस पीते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं? एक स्ट्रिप को कहते हैं. ठीक है, तो स्ट्रिप्स आर आइदर होलो और दे आर सॉलिड और ब्लाइंड. ठीक है, या सॉलिड होते हैं या उसमें सुराख होता है. तो जो स्ट्राइटेड है, जैसे आपने कभी वो देग वाला गोश्त खाया होगा, जैसे आप उसको अलग करते हैं तो वो मुख्तलिफ दागों में या स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्राइडेड. इन द सेम वे हार्ट मसल भी इस तरह दागों पर मुश्तमिल है या स्ट्राइडेड होते हैं. ठीक है, सो this is the similarity between the skeletal muscle and the cardiac muscle. Cardiac muscle has typical myofibril that contain actin and myosin filaments almost identical to those found in the skeletal muscle. जैसे मैंने आपको बताया कि डेंस वहां पर सिर्फ जी लाइन के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पर डेंस बॉडी के साथ अटैच होते हैं. On the other way, they have the same actin and myosin. These filaments lie side by side and slide along one another during contraction in the same manner as occur in the skeletal. जैसे मैंने कहा कि वो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कार्डियक मसल में भी एक्टिन और मायोसिन, जब जी लाइंस आपस में जब एक्टिन और जब मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ अटैच होता है तो उसको कंट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और इसी तरह कंट्रैक्शन हो जाती है. इन द सेम वे दिस कंट्रैक्शन आल्सो अकर इन द कार्डियक मसल. But in other way, cardiac muscle is quite different from skeletal muscle.
कैसे उसमें डिफरेंट है। ये लेटेस वो मैंने बताया आपको कि लेटेस वर्क क्या होता है। ये आपने ये लड़कियों का ही देखा होगा कि ये देखें, ये एक ब्रांच आ रही है, यहाँ पर ये कंबाइन हो जाते हैं, फिर ये दो में डिवाइड हो गए इस तरह। तो दिस इज नॉट लेटेस्ट वर्क, कार्डियक मसल इसी तरह बने हुए हैं। अब आप लोगों ने कंट्रैक्शन कपलिंग एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म यू हैव स्टडी इन द स्केलेटल मसल कि उसमें एक्साइटेशन कपलिंग कंट्रैक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। उसमें आपने देखा कि ये मायोसिन है और ये क्या है, एक्टिन है। लेकिन स्केलेटल में मायोसिन साइडों पर निकले होते हैं, ठीक है। जैसे चरखी के जो वो होते हैं विंग्स, वो चारों तरफ जैसे ये राउंड सीढ़ी होती है जैसे चलते, तो इसी अंदाज में एक्टिन हेड्स मायोसिन के साथ उसके हेड अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पर मायोसिन के हेड एक साइड पर अटैच होते हैं, दो हेड होते हैं इसके, और ये एक्टिन है, ठीक है। अब एक्टिन के जो है 3 पार्ट्स हैं। एक ट्रोपोमाइसिन है, ये जो फाइबर है बना हुआ, ये क्या है, ये ट्रोपोमाइसिन है। इसके गिर्द एक और मॉलिक्यूलर लेयर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिन। ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये एक और स्ट्रिप इसके गिर्द एक्टिन के गिर्द ट्रोपोमाइसिन के गिर्द लिपटा होता है। इट इज वो अराउंड द tropomyosin, so this is called actin, and there is a complex, ठीक है। इस complex में 3 molecule होते हैं, you can see here in the green color and pink color, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में है जिसको हम कहते हैं cardiac myocardium myosin, thick filament contain 2 head ATPase activity। इसमें इस हेड के साथ क्या चीज अटैच होती है, ATPase। जब ATPase इसके साथ अटैच हो जाए तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। थिन फिलामेंट मेड ऑफ एक्टिन, जो मैंने बताया, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन TN&TC, ठीक है। तो इसमें ये TN है, ठीक है, तो एक उसमें TC हो गया। ये TC जो है ट्रोपोनिन C, ये अटैच करता है किसको, ये वाला पिंक, ये अटैच करता है किसको, कैल्शियम को। जब कैल्शियम इसके साथ अटैच हो जाता है इस वाले के साथ, और ट्रोपोनिन I ये कैल्शियम के अटैचमेंट को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो यहाँ इनहिबिशन, ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये कैल्शियम को इनहिबिट कर लेते हैं ताकि वक्फा मिले 2 कंट्रैक्शन के दरमियान। कैल्शियम जब इसके साथ ट्रोपोनिन C के साथ जब कैल्शियम अटैच होता है तो फिर ये और इस हेड के साथ ATPase अटैच हो जाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हेड आके इसके एक्टिन के साथ अटैच होके कंट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो इस कंट्रैक्शन को रोकने के लिए ट्रोपोनिन I कैल्शियम को अटैच होने से रोकते हैं। किस वक्त रोकते हैं, जब मसल ने कंट्रैक्ट नहीं करना हो, ठीक है। और ट्रोपोनिन C, जब मसल ने कंट्रैक्ट करना हो तो ट्रोपोनिन C आके इसके साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद मसल कंट्रैक्शन शुरू कर लेता है। ये कहाँ से, ये कैल्शियम कहाँ आ जाता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको पढ़ाया स्केलेटल मसल में कि वो सार्कोप्लाज्म में इन फाइबर्स के दरमियान, इन फाइबर्स के गिर्द एक जाली बन जाती है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उस रेटिकुलम से ये कैल्शियम कार्डियक मसल में आता है और यहाँ पर ट्रोपोनिन C के साथ अटैच होके इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसका ये एक्टिव फॉर्म एक्टिन का जो है ट्रोपोमाइसिन का ये एक्सपोज हो जाता है और उसके साथ मायोसिन हेड आके अटैच होके, जैसे कब्जा है हैंज लाइक, आप अपने हाथ को देखें ये रेस्ट जॉइंट पे, तो ये इस तरह मूवमेंट इसकी होती है
और इस मोमेंट से मसल कंट्रैक्शन हो जाती है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन इन द कार्डियक मसल. आपको अगर ये स्केलेटल मसल आपको पढ़ाया गया है तो इसमें आपको इन द सेम वे हियर आल्सो वी हैव दैट कॉम्प्लेक्स ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ठीक है. और ये आप देखें ट्रोपोमाइसिन है, ये डार्क कलर में, और ये इसमें एफ एक्टीन है, उसको हम एक्टीन कहते हैं, एफ एक्टीन है, ठीक है. और इस एफ एक्टीन पर यू कैन सी दैट there are active site. So when calcium attached to this complex, troponin complex, the muscle fiber, there is a twitch occur in the muscle fiber, and these active sites are exposed, and then the myosin heads are attached to these active site, and it causes contraction. जो work theory आपको पढ़ाई गई होगी रशीद साहब ने, तो आपको वो उससे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है. Cardiac muscle is a sensation. Why we call what is, first of all, what is sensation? Sensation means when there is electrical current or when there is electrical activity in any body, in any muscle, ठीक है. So when the whole muscle contract at the same time, when the whole muscle contract at the same time, this is called sensation. So the cardiac muscle contract at the same time, ठीक है. आप ये देखिए स्केलेटल मसल, सारे मसल एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करते. मसलन अगर आप पाँव को चोट लगती है तो जिस साइड को चोट लगती है आप उसी पाँव को उठाते हैं और दूसरा पाँव नहीं उठाते, ठीक है. उसके साथ दूसरा पाँव नहीं उठता. तो ये स्केलेटल मसल जो है ये अलग अलग काम करते हैं, दे वर्क सेपरेटली, बट द कार्डियक मसल वर्क इन एज ए होल. वो सारे मसल एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं. मतलब एट्रिया जब स्टिमुलेट होगा तो दोनों एट्रिया एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं, और जब वेंट्रिकुलर की स्टिमुलेशन होती है सो बोथ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम. सो when both the muscle of the atria contract at the same time, this is called sensation. And when both the muscle of ventricle contract at the same time, this is called ventricular sensation. So the dark area crossing the cardiac muscle fiber are called intercalated discs. ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इस पिक्चर में, there are dot lines. These are dot lines. These dot lines are called intercalated discs, and these discs are located transversely, not horizontally. They are transversely located, and these intercalated discs are actually between myocardial cell. ये एक myocardial cell है और एक myocardial cell ये है. So in between the two myocardial cells there is a disc or separation, ठीक है, or a joining line which join these two cells with each other. This line is called intercalated disc. There are actual cell membrane that separate individual cardiac muscle cell from one another. This line actually separate this cell from this cell. That is, cardiac muscle fiber are made of many individual cells connected in series and in parallel with one another. Series means this will connect to this. एक ही लाइन में कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, वो एक फाइबर जो बनेगा. So these cells are connected in series. सीधी लाइन में जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज. एंड when fiber is formed, ये आप देखें, ये सेल मिल गया, ये सेल मिल गया, ये मिल गया, ये, so it has made a cardiac fiber. So these cells are in series and it is parallel with the other fiber. ये देखें, इसके साथ ये parallelly ये दूसरा फाइबर है, ये सीरीज में कार्डियक सेल आपस में मिलते हैं, और फिर ये क्या है, ये पैरेलली ये सेल जो है ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं.
और ये जो डिस्क हैं they are transversely located. This is the nucleus of the cardiac muscle. Now gap junction, cardiac muscle में gap junction होते हैं, and this gap junction play a major role in the sensation property of the cardiac muscle. ठीक है, sensation इसमें क्यों होती है कि इसमें gap junction है. अब ये देखें कि this is one cardiac cell, this is the other cardiac cell. So these cardiac cells are joined by जैसे मैंने कहा कि they are joined by intercalated discs, and in these intercalated discs we have these chambers or tunnels. ठीक है, so these tunnels actually connect one cardiac cell with the other cardiac cell. ठीक है, so at each intercalated disc the membrane fuse one another in such a way that they form permeable communicating junction gap that allow almost totally free diffusion of ion. ये देखें कि इस सेल से इस सेल में या इससे इस सेल में क्या होगा कि आयन की जो एक्सचेंज है वो इन बोथ डायरेक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है. So these tunnels are called gap junction. ठीक है, ये एक सेल और this intercalated disc में ये gap junction बने होते हैं. ठीक है, ions move with ease in both direction. जैसे मैंने आपको बताया, thus cardiac muscle is sensation of many hot muscle cells in which the cardiac muscle are so interconnected. When one of these cells become excited, the action potential spread to all them, spreading from cell to cell throughout the lattice work interconnection. ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जब when there is stimulation, all the cells are connected with each other by these tunnels. ठीक है, these gap junctions, and the ion freely move. तो अब जब करंट आएगा तो ये आयन इस सेल से इसमें आएंगे, तो ये स्टिमुलेट हो गया, इसने इसको स्टिमुलेट किया एंड सो ऑन. ये एक चैनल चलता है. तो एक सेल जब स्टिमुलेट होगा तो सारे सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इस तरह कार्डियक मसल एक सेंसेशन एक साथ उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, तो इसको हम सेंसेशन और गैप जंक्शन. सेंसेशन किसकी वजह से होती है? गैप जंक्शन की वजह से हो जाती है. ठीक है, now the heart actually act as a sensation. ठीक है, the atrium there situated the wall. ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको वहां पर वो समझा दिया कि गैप जंक्शन है उसके लिए. the atria, अब ये atria अलग क्यों contract है? Why the atria contract separately and why the ventricle contract separately? इसमें एक mechanism होता है. ठीक है, what is that mechanism? The atria separated from the ventricle by fibrous tissue that surround the atrioventricular valve opening between the atria and ventricle. There is a fibrous tissue which cover the atrioventricular valve. जैसे आप किसी तार से टेप को लपेट लेते हैं, तो this tape actually separate the joining or this is insulated, and it prevent the mixing or a shortcut between the two wires. So this fibrous tissue which cover actually the atrioventricular valve is actually as insulator. ये insulator का काम करता है और ये prevent करता है किसको कि ये current ventricle atria से ventricle में न जाए, ताकि जब when the atria is goes into contraction, so उसी वक्त ventricle की कहीं contraction ना हो जाए, तो उसको prevent करने के लिए यहाँ ये fibrous tissue की जो है insulation होती है. Normally potential are not conducted from the atria sensation into the ventricle. जब atria एक साथ contract होंगे right and left, तो ventricle उस वक्त relax कर रहा होता है क्योंकि उसमें current पास नहीं हो रहा है. किसकी वजह से? इस insulation की वजह से जो fibrous tissue है और जो valve पर लगे हुए हैं. Instead they are conducted only by
a specialized conductive system called AV bundle. जो मैंने आपको बताया AV node है, bundle of S, yeah, the right bundle branch and then left bundle branch. So then the current is spread to the ventricular by atrioventricular node. ठीक है, उसमें से ये and there is a delay here in the atrioventricular node. ठीक है, so इस यहाँ पर जो एट्रिया से करंट आएगा किसके जरिए से आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि ऐसे नोड से एवी नोड में आएगा और एवी नोड से फिर उसमें चला वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पर एवी नोड पर थोड़ा सा डिले होता है, तो उस डिले की वजह से एट्रिया को कंट्रैक्शन का मौका मिलता है और उस दौरान में वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होता है। जब एट्रिया कंट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल क्या होगा, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होती है। एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक मसल कैसे होती है इसमें, द एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड इन वेंट्रिकुलर मसल फाइबर एवरेज अबाउट 105 मिलीवोल्ट। जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें आपको स्केलेटल मसल का पता है कितना होगा, वो -70 पर -70 होता है, और जब -40 पर चला जाता है तो action potential is produced. Here the total strength of action potential in the cardiac muscle is 105. कैसे होता है, which means that the intraventricular rise from a very negative value about -85, उसमें कौन सा -70 होता है, कार्डियक मसल में कितना होता है -85 मिलीवोल्ट, between beats to beat slight positive वैल्यू अबाउट 40, वो 20 ये जो है जब पॉजिटिविटी 20 हो जाती है तो कार्डियक मसल में स्टिमुलेशन पैदा हो जाती है, लेकिन स्केलेटल में -40 पर ड्यूरिंग ईच बीट। ठीक है, after the initial spike the membrane remain depolarized for about 0.2 seconds, exhibiting a plateau followed at the end of the plateau by abrupt repolarization। अब आपने देखा होगा कि स्केलेटल मसल में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से पिन ले लूं, अब उसमें क्या होता है स्केलेटल मसल में कि ये वो टाइम है रिफ्लेक्टिव पीरियड जिसमें आप इसको स्टेबुलेट नहीं करते हैं, देयर इज सडन spike of the action potential and sudden this is the upper spike is depolarization and this is the repolarization। ठीक है, तो ये एकदम नीचे आ जाता है। स्केलेटल मसल में जब एक्टिवेशन होती है तो वो एकदम से ऊपर और फिर नीचे इन मिली सेकंड होता है, लेकिन कार्डियक मसल में ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ से स्पाइक पहले जाता है, फिर यहाँ एक प्लेटो सा बन जाता है एंड देन देयर इज, अब ये जो प्लेटो है ये वाला, दिस इज अबाउट 0.2 सेकेंड ये दौरान। तो इस दौरान में आपको क्या होगा कि देयर इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल की जैसे मैंने बताया कि स्केलेटल मसल में एक्शन पोटेंशियल या उसमें कंट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि कार्डियक मसल में डिले होती है। ठीक है, तो ये वो प्रोलॉन्गेशन है जो इस प्लेटो की वजह से बन जाती है, और उस वो व्हाट इज द ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन कितना है, द ड्यूरेशन इज 0.02 सेकेंड। ठीक है, नाउ ठीक है, तो अब ये एक्शन पोटेंशियल को हम उसका डिस्कस कर रहे थे। हाँ, now the presence of this plateau in the action potential cause ventricular contraction to last as much as 15 times as longer than the cardiac muscle as in skeletal muscle। अब जो
इसका जो कंट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल का, इट इज 15 टाइम मोर देन द स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल बहुत जल्दी रिलैक्स कर जाता है, जबकि कार्डियक मसल 15 टाइम मोर रिमेन इन ए कंट्रैक्टेड पोजीशन। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द प्लेटो जो मैंने आपको बना के दिया, ये कि -85 से ये जब 20 पर चला जाता है तो ये इनिशियल स्पाइक है। ये देखें, इनिशियली व्हेन देयर इज स्टिमुलेशन, ठीक है, तो ये -20 पर, तो ये करंट कहाँ स्प्रेड होता है, एट्रियम में, और फिर एक और इसमें प्लेटो बन जाते हैं, और इस प्लेटो के बाद ये डाउन फॉल होता है, तो फिर ये रिपोलराइजेशन, इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और इस प्लेटो की वजह से एट्रिया जब कंट्रैक्शन में होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका ये प्लेटो कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म मैं अब आपको बता देता हूँ। दिस इज एन अदर डायग्राम। ठीक है, ये हो गया और ये प्लेटो बन गया। ठीक है, और इस तरह आपको जो है टाइम मिल जाता है वेंट्रिकल को कि वो रिलैक्स कर जाए। व्हाट कॉल्ड द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड द प्लेटो, ये प्लेटो कैसे बनता है इसमें? So at least two major effects between the membrane potential of cardiac and skeletal muscle account for the prolonged action potential and plateau in the cardiac muscle. कौन से दो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है? क्या है? First, the action potential of skeletal muscle is caused almost entirely by sudden opening fast sodium channel. इसमें जैसे न्यूरॉन में होते हैं सोडियम चैनल, जब उसमें एक्शन पोटेंशियल है तो सोडियम चैनल खुल जाते हैं, देयर इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड देयर इज द एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड, बट सडनली इन न्यूरॉन देन देयर इज repolarization that allows the sodium to enter the skeletal muscle. ठीक है, remain open for only a few thousand of a second, मतलब हजारवें हिस्से तक ये जो चैनल होते हैं न्यूरॉन में, ये सेकंड के हजारवें हिस्से तक खुले रहते हैं और उसके बाद फौरन बंद हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल उसमें ड्रॉप हो जाती है। At the end of this closure, repolarization occurs and action potential is over within another 1000 of second. तो उसमें जल्दी एक्शन पोटेंशियल, तो सेकंड के हजारवें हिस्से में उसमें एक्शन पोटेंशियल बनती है स्केलेटल मसल में, और हजारवें हिस्से में फिर वो खत्म हो जाती है। मतलब ये कि द एक्शन पोटेंशियल produced and terminated in the skeletal muscle is very quick, बड़ी जल्दी और आसानी से वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल में क्या होगा? The action by opening up two type of channels, उसमें दो किस्म के चैनल है। The same pass sodium channel as this is the skeletal. एक चैनल उसमें कौन सा है? जो स्केलेटल मसल में सोडियम चैनल, जो कि बहुत जल्दी खुल जाता है और बहुत जल्दी बंद होता है। तो जब करंट उसमें आता है तो अचानक वो सोडियम चैनल खुल जाता है एंड देयर इज अ स्पाइक। लेकिन ये स्पाइक एकदम स्केलेटल मसल की वजह उसके वजह से नीचे नहीं आता, क्योंकि देयर इज एन अदर चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्लो कैल्शियम चैनल, व्हिच आर आल्सो कॉल्ड कैल्शियम सोडियम चैनल, और इसको पनी चैनल भी कहते हैं। ठीक है, ये पनी चैनल भी है, ये स्लो कैल्शियम चैनल भी है, और ये सोडियम के। तो इस दौरान में व्हेन द सोडियम इज एंटरिंग and other channel is open at the top of the spike of the potential, in which the calcium and sodium start entering the cardiac muscle fiber. ठीक है, so avoid its to prolong its repolarization. ठीक है, ये आप मतलब यूं समझ लें कि यहां से ये स्पाइक है तो ये सोडियम चैनल खुल गया। ठीक है, और सोडियम इन्फ्लेक्स हो गया कार्डियक मसल में। अब जब यहाँ पर ये +20 पर आ जाता है, ठीक है, तो +20 पर क्या होता है कि एक और चैनल जिसको स्लो कैल्शियम चैनल कहते हैं वो खुल जाता है। अब मजीद कैल्शियम क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, और इसके साथ कैल्शियम के साथ सोडियम भी आ जाता है।
तो दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव जब रहेगी तो रिपोलराइजेशन नहीं होती। तो जब ये चैनल जब तक खुले रहते हैं, और इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.2 सेकेंड है। ठीक है, तो ये चैनल खुले रहेंगे और मसल डीपोलराइज रहेगा, और उसके बाद जब ये चैनल बंद हो जाते हैं तो ये इसकी जो स्पाइक नीचे आ जाती है। ठीक है, ये फिर रिपोलराइज हो जाता है। तो इस दौरान में ये ड्यूरेशन जो है इसकी प्रोलॉन्ग हो जाती है, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन स्केलेटल मसल की प्रोलॉन्ग रहती है। अब इसमें एक और मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है, और वो मैकेनिज्म है this channel slow to open, and even more important, remain open for several seconds. During this time, a large quantity of both calcium and sodium ion flow through the channel to the interior of the cardiac muscle, and this maintains a prolonged period of depolarization, causing the plateau in the action potential. Further, the calcium ion that enter during this plateau phase activate the muscle contractile pressure, while the calcium ion that cause skeletal muscle contraction are derived from the intracellular sarcoplasm reticulum. ठीक है, अब आपको अगर टी ट्यूब्यूल याद हो तो कार्डियक मसल में भी टी ट्यूब्यूल होते हैं और स्केलेटल मसल में भी। तो इसके सार्कोप्लाज्म में भी कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्डियक मसल में सार्कोप्लाज्म से भी आता है और टी ट्यूब्यूल से भी आता है। और ये याद रखें कि टी ट्यूब्यूल कार्डियक मसल में 5 times more broader than the skeletal muscle. ठीक है, and it has 25 times more calcium than the skeletal muscle. तो 5 times उसका उसमें क्या उसका जो डायमीटर ज्यादा होता है, और 25 times इसका वो क्या कहते हैं इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी कंट्रैक्शन ज्यादा रहती है। The second major functional difference between after the onset of action potential, the permeability of the cardiac muscle membrane for potassium ion decrease about 5-fold, an effect that does not occur in skeletal muscle. आपने skeletal muscle में action potential को देखा होगा कि जब सोडियम आयन एंटर करते हैं तो पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस वजह से जल्दी से डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होती है। सोडियम एंटर करता है और पोटेशियम रिफ्लेक्स करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब स्लो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो वो स्टॉप कर लेते हैं किसको, पोटेशियम चैनल को। वो पोटेशियम को बाहर जाने नहीं देते, दे डोंट अलाउ टू एस्केप द potassium from the muscle fiber, and this is the reason that the action potential in the cardiac muscle remain for longer duration. The decreased potassium permeability greatly decrease the outflux to ये potassium बाहर नहीं निकलता when slow channel जब जो slow calcium channel when they are closed, so then the potassium escape from the fiber very quickly, and this duration is जैसे मैंने आपको बताया कि 0.2 to 0.3 सेकेंड होता है। ठीक है, और इस दौरान में मसल की कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा रहती है। Velocity of signal conduction in the cardiac muscle. The velocity of conduction of action potential along both atria and ventricular muscle is about 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें वेलोसिटी कितनी है, 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड, और अबाउट कितना होता है 1/250 द वेलोसिटी इन एवरी लार्ज नर्व फाइबर। ये कितना होगा, इससे तकरीबन उससे 250 गुना कम होता है। जो नर्व में ट्रांसमिशन है एक्शन पोटेंशियल की, वो कार्डियक मसल में 250 गुना ज्यादा है कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल में जो ट्रेवलिंग होती है वो नर्व मसल में ज्यादा होती है और कार्डियक मसल में कम है। एंड अबाउट वेलोसिटी इन स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल में उससे 10 गुना कम है और
न्यूरॉन में 150 गुना उससे कम है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन स्पेशलाइज्ड हार्ट कंडक्टिव सिस्टम इन द परकेंजी फाइबर इज ग्रेटर एज 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अदर मसल में क्या है, ये मसल में तो ये 0.3 0.5 मीटर है, लेकिन परकेंजी फाइबर जो मैंने आपको बताया कि ये आखिरी फाइबर है किसके, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के आखिरी फाइबर है परकेंजी फाइबर, तो उसमें स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, which allow the reasonable rapid conduction of excitability signal to different part of the heart, ठीक है। ये जब यहाँ पर ये स्पीड ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि हार्ट मसल ज्यादा तेजी से एक्साइट होंगे, ठीक है। अब refractive period of the cardiac muscle. The refractive period of the cardiac muscle is interval time during which normal cardiac cannot re-excited and already excited area. Refractive period क्या होता है, ये दो किस्म के हैं, one is relative refractive period and the other is absolute refractive period. In relative refractive period, like in skeletal muscle, when there is a relative refractive period, when you apply a strong stimulus, you can stimulate the cardiac, the muscle fiber or the whole muscle. But in absolute refractive period, जब absolute refractive period होगा तो उसमें अगर आप जितना भी strong current देंगे उसको आप reactivate नहीं कर सकते हैं। तो cardiac muscle में मैं समझा कि refractive period, if you will apply the excitation current, how strong it is, but it will not produce another contraction in the cardiac muscle. And this is why the cardiac muscle never goes into tetany, कि आप उसको एक मरतबा जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, जब तक ये साइकिल पूरा नहीं होता है इसका, उस वक्त तक आप दोबारा इसको स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल, जैसे जो आपकी स्केलेटल मसल है ये टेटनी में चले जाते हैं। टेटनी मतलब ये है कि आपने कभी देखा, आप ज्यादा देर तक किसी सीट पर बैठे रहते हैं तो आपकी टांगे जो है ना वो अकड़ जाती हैं, ठीक है, वो उसमें कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है मसल में, उसको हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। ये कैल्शियम डिफिशिएंसी में भी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिपीटेड स्ट्रांगली करंट अप्लाई करें स्केलेटल मसल को तो उसमें टेटनी पैदा हो जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज से लटक रहे हो तो थोड़ी देर के बाद ये बार बार जो स्केलेटल मसल है वो एक्टिवेट होता रहता है, तो उस थोड़ी देर के बाद उसमें आप देखते हैं कि वो लर्जश सी पैदा हो जाती हैं, सो दैट लर्जश इज कॉल्ड टेटनी, ठीक है। बट इन कार्डियक मसल this phenomena does not occur, that's why the cardiac muscle never go into tetany. Now ये जो मैंने आपको ये पढ़ाया था आपको ये पहले स्लाइड में, वो जो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट में अटेंड किया कि SN node है, AV node है, bundle of S, right bundle right, left bundle right, and these are the Purkinje fiber, and it is actually the conductive system of the heart, and these are actually modified cardiac cells, ठीक है यार, ये modified cardiac, they are not neuronal cells, they conduct the electrical current, or in these from SA to these are called the conductive channels, ठीक है, इसको conductive channel कहते हैं और ये इसकी excitability होती है तरह से। Opening, तो ये वो बातें आखिर में जो मैंने आपको बता दिया था कि ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट, सोडियम चैनल पहले खुलता है, फिर उसके बाद स्लो चैनल खुलता है, हमने ये सुना उसमें एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म में, फिर क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। जब ये चैनल खुल जाए तो सोडियम प्लस करेगा, जब ये चैनल खुलेगा तो कैल्शियम आएगा, ठीक है। और जब ये कैल्शियम वाला चैनल को
बंद होगा और खुला होगा तो पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जब ये बंद हो जाता है तो फिर पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ वोल्टेज कैल्शियम चैनल, जब ये वाले चैनल कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं तो देयर इज रिटर्न ऑफ द रिपोलराइजेशन, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट, अब ये एमसीक्यू है, आप लोगों की डिमांड है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, चूज द एमसीक्यू, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्टिंग अलोंग द टिश्यू ऑफ हार्ट, इसमें कौन से हैं? ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है, बल्कि 5 हैं, तो इसमें आप वो कर लें, मुझे बताएं क्या कहते हैं इसमें चैट में, इसका सही आंसर कौन सा है? एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एक्सक्यूज मी सर, जी तो मैं द टाइम खत्म देन लग्जरी राउंड ऑफ के जी बस ठीक है, ये एक वो है, मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप इसका जो है ना वो निकालेंगे इसमें सही सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू है, these cells are known as primary Purkinje fiber of heart, कौन से हैं? तो आप ये इसमें इसका जवाब आप मुझे भेज दें, ये लेक्चर आपको वो हो जाएगा, मैं ईमेल कर देता हूँ, आप पढ़ लें और इसके आंसर मुझे वो भेज देंगे, ठीक है। So I think if there is any questions, so if there is any question you can ask. I think